full name, except on legal business documents and is referred to simply as IEEE. On the ground level, it is the platform for the people who are willing to learn their business by just simply being a member of world's largest online community. What missions does IEEE have? The IEEE promotes the engineering process of creating and developing, integrating, sharing, applying knowledge about electro and information technologies and sciences for the benefits of humanity and the profession. Now, what the benefits a member have if he becomes a part of IEEE? Establish a professional and profit highlighting your goals. Discover IEEE events and activities throughout the world. Join and participate in discussions on various technical interests. Create group to share projects. Now come towards benefits of being a member. Which resources IEEE gives? In IEEE, you get resources on news, web TV programs, ebooks, and educational resources allow you to stay connected with the latest technology and trends. Program to advance your career goals, skills, and much more. Opportunities. Expand your personal network with who share your expertise and commitment. Join IEEE society or groups focused to area of special interest. IEEE also give discounts to technical resources, digital libraries, continuing education courses, and much more. What advantages IEEE have for a student? Student gets a certified program, online learning network, resource centers, e-libraries, and chance of learning with the professionals from all over the world. Goal of IEEE in future: drive global innovation through board collaboration and sharing of knowledge, enhance public understanding of engineering and technology, and pursue standards for their practical application. Be a trusted source of educational services and resources to support lifelong learning, provide opportunities for career and professional development. With the great motive to great achievement of IEEE, IEEE promises to drive growth over the next 5 years. Delivering on this plan, you can be a part of this reliable platform of IEEE by just filling the form online. Thank you. Thank you, Zed. So, hello everyone. I am Vishal Kumar. I will be hosting you guys, and I welcome you all in this session. So, for further, I would like to invite Mustafa Sheikh for today's webinar about how to become a developer. And yes, one more thing, I want to mention that a recorded version of this webinar will be available in case if you are disconnected. We would like to love to hear from you. Any questions, if you have, you can ask fill in the chat box. Sir Mustafa, you can start. Okay, sure. Thank you so much. Assalamu alaikum to everyone. So my name is Mustafa Sheikh, and I'm a final year student at FAST University doing my BScs over there. So I'm a web developer, and I love to develop a website. And सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वेब डेवलपर्स को एक्चुअली इस फील्ड के अंदर वो ये होता है कि उनको प्रॉपर गाइड मैप नहीं मिलती है, रोड मैप जो होता है सबसे ज़्यादा लैग करता है उनके पास. टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने भी कोई स्टार्ट किया था यही वेब डेवलपमेंट एज अ करियर पे, तो ऐसा मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी इसके अंदर, मुझे कोई सही बात नहीं बताया गया. तो ये जो सेशन जो अरेंज किया गया है वो इसी बेसिस पे किया गया है कि आई विल बी गाइडिंग यू द रोड मैप टुवर्ड हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल वेब डेवलपर. तो let me share my screen, and I have prepared some kind of slides for you guys. Can you guys see my screen? Yes. Awesome. Uh, so is it there? नजर आ रहा है सबको? Okay. तो ये तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो बता दिया कि मैं कौन हूँ और मैं एज अ डेवलपर
वेब डेवलपर, तो पहला जो सवाल आता है ध्यान में, मतलब यूजुअली जो डेवलपर पूछते हैं, मतलब जो बंदे रहने आए होते हैं इस मार्केट में, वो पूछते हैं कि यार एक्चुअली वेब डेवलपर होता कौन है और वो करता क्या है। तो आपने जाहिर सी बात है कोई ब्राउजर पे कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हो तो वो एक वेब पेज आपके सामने पूरा होता है, जिसको प्रोसेस से बनता है ना, वो उसको वेब डेवलपर बनाता है। वो क्या काम करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। ये वेब डेवलपर का रोल होता है पूरा ओवरऑल। और इसमें ये भी आती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिसमें लोग बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं और बाज़ औक़ात पूछते हैं कि यार ये वेब डिज़ाइनर क्या होता है, वेब डेवलपर क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है, मल्टी स्टैक, मिड स्टैक वगैरह, लोग इसमें बहुत ज़्यादा होता है कभी-कभी। तो सिंपल है, जो वेब डिज़ाइनर होता है, डिज़ाइनर इटसेल्फ बता देता है कि ये बंदा एक डिज़ाइन करता है, यानी पैटर्न बनाता है, ये एक आपके सामने कोई यूआई बनाता है, सही है। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल मेरे पास है कि आप लोगों ने ये चीज़ नोट की है, किसी ने कोई 1990s का होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसको पता होगा कि ये इंटरफेस आता था फेसबुक के ऊपर बहुत पहले। तो अच्छा, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इस सेशन को मैं इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो कोई भी कोई सवालात वगैरह हो, जस्ट गो अहेड, पूछो। तो ये मैसेज में नहीं टाइप करो, आप माइक खोल के बात कर सकते हो डायरेक्ट, सही है। तो वेब डिज़ाइन के ऊपर बता रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं एक्चुअली कि जो वेब डिज़ाइनर होता है उसकी कोई डिमांड वगैरह बहुत रेयर होती है, कि आज बाज़ औक़ात आप देखोगे हर कोई लोग डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई डेवलपर बनना चाहता है। बट मैं बताता चलूँ कि इसकी डिमांड है, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं डिज़ाइनर की नहीं, डेवलपर की बहुत डिमांड है। तो डिज़ाइनर की इटसेल्फ बहुत बड़ी अहमियत है मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। तो अब आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं कि जो एक यूआई है आपके सामने, सही है। आप इसमें ज़ाहिर-सी बात है कितनी चीज़ें लिखनी है, आपको चीज़ें मुश्किलात हो रही हैं कि नोटिफ़िकेशंस कैसे पता चल रही हैं मुझे, न्यूज़ फीड मेरी कैसी आ रही है। तो एक जो डिज़ाइनर का रोल जो होता है, डिज़ाइनर का जो इटसेल्फ रोल होता है, वो ये होता है कि उस चीज़ों को आसान कर सके, जो लोग इंटरफ़ेस समझ सकें उसका बहुत ज़्यादा आराम से। तो अब फेसबुक की ही से एग्जांपल दे देता हूँ कि कितना सिंपल इंटरफ़ेस कर दिया है। ओके, आई थिंक वी गॉट अ क्वेश्चन। से व्हाट ओके, सो व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड इन द वेब डेवलपमेंट these days? हाँ, अच्छा सवाल है ये। ये सवाल अभी आगे आ रहा है शायद, मतलब इसका पूरा मैंने जवाब पूरा रेडी किया हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। मैं अभी डिज़ाइनर के रोल बता रहा हूँ, मैं पहले क्लियर करवा रहा हूँ कि ये होता क्या है। बिल्कुल एक बेसिक्स है, जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाए कि डिज़ाइनर और डेवलपर में क्या फ़र्क है। डिज़ाइनर खाली फोकस कर रहा होता है इस टाइम, जो जैसे कि ये आपने वो इंटरैक्शन ईज़ी करता है। इसकी एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप छोटे बच्चे को देखो, जो छोटा बच्चा होता है उसको इतनी फ़ैमिलियरिटी नहीं होती है, इतना ज़्यादा नहीं पता होता। अगर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 8 साल, 7 साल के बच्चे, तो अगर आप उसको मोबाइल दोगे तो वो बहुत जल्दी उसको अडैप्ट करेगा उस चीज़ों को, बहुत जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरफ़ेस ऐसा है, यानी उसमें आइकन यूज़ेबिलिटी ऐसी बनाई गई है कि उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। तो इसी की जो वेब डिज़ाइनर है, सही है, वो उसका रोल उसमें आता है कि वो हर चीज़ों को देखता है कि कितना ईज़ी इंटरफ़ेस हो। अगर मैं प्रीवियस जाऊँ, इससे यूआई को मैं चेक करता हूँ, तो ये कितनी मुझे हार्ड लग रही है एज़ कम्पेयर टू उसके। क्योंकि इधर आपको सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ आपकी न्यूज़ फीड आ रही है, या आपके यहाँ पे लॉगिन्स की चीज़, मतलब सॉरी, यहाँ पे आपके वो आ रहे हैं कि जो लॉगिन हुए हुए हैं, यूज़र जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो सारे आ रहे होंगे अकाउंट में। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो कि डिज़ाइनिंग में आती हैं। अब आती है बात डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है? मतलब एज़ अ अब तो हो गया वेब डिज़ाइनर, एक होता है बैकएंड पे। बैकएंड पे ये होता है कि जैसे आप कोई क्लिक कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे कुछ चीज़ इनिशिएट हो रही है, लाइक कि जब आप हाय का मैसेज अपने दोस्त को भेजते हैं और वो भी अपनी एंड से वापस भेजता है, तो ये क्या होता है, आपके पास बैकएंड फंक्शनैलिटी होती है। जी, जी। किसी ने माइक ओपन किया? कुछ पूछना तो पहले पूछ लो। ओके, तो ये बैकएंड फंक्शनैलिटी टाइप होती है। लाइकवाइज़ के जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप लॉगिन कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके, so they just ask you about your username and password. You just give that username and then you hit login button. तो जब आप बटन पे हिट करते हैं ना, वो आती है आपकी बैकएंड की फंक्शनैलिटी, जो कि डिफाइन की होती है बैकएंड डेवलपर। तो वो एज़ अ काइंड ऑफ बैकएंड की चीज़ होती है। और जो यूआई कंसर्न होता है वो होता है डिज़ाइनर, और बैकएंड का कंसर्न होता है वो होता है आपका बैकएंड डेवलपर। तो अब बात आती है कि मतलब वेब डेवलपर और फुल स्टैक वेब डेवलपर किस तरह बना जाता है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो यूआई यूएक्स होती है। यूआई यूएक्स कहा जाता है यूजर इंटरफेस को, सही है, और यूजर एक्सपीरियंस को। अब इसकी एग्जांपल ये थी,
कि ये एक यूजर इंटरफेस है जो आपको नजर आ रहा है, जो आपके सामने नजर आ रहा है वो एक यूजर इंटरफेस है। और उसका एक्सपीरियंस जैसे होगा कि उसका एक्सपीरियंस इससा हो सकता है कि जैसे कि आपको इजी वे लग रहा है, एफिशिएंटली आप चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप आराम से कर रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद आता है फ्रंट एंड, यानी जो आपने जो डिज़ाइन बनाया था किसी पेंसिल से किसी भी चीज़ पर, या आपने वायर फ्रेम किया था और वो आपने फ्रंट एंड यानी कि कोड में तब्दील कर दिया। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि आपने कोड कर दिया, और बैक एंड का मतलब ये कि आपने उसके अंदर फंक्शनैलिटी वगैरह डाली। और बिजनेस लॉजिक वो आ जाती है जिसकी बेसिस पे काम कर रही है। लाइकवाइज बिजनेस लॉजिक फेसबुक की क्या है, कनेक्टिंग पीपल्स, के लोगों को कनेक्ट कर रही है आपस में, कहीं से भी हो आपस में चैट कर सकते हैं। और बैक एंड जाहिर सी बात है आपका डेटाबेस मेंटेन कर रही है, वो चीज़ अपने पास स्टोर कर रही है। तो जो फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाया जाता है ना, उसके पास ये सारे स्किल्स होते हैं। वो यूआई यूएक्स से लेके फ्रंट एंड से लेके बैक एंड से लेके आपके जो बिजनेस लॉजिक्स हैं, डेटाबेस डिजाइंस हैं, डेटाबेस है, वो सारे वही हैंडल करता है। दिस इज अ होल कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपर जो कि कहा जाता है। अब आगे जो भी सवाल आया था, आई गेस राजेश था शायद, मैंने सवाल पूछा था, तो उनका सवाल का जवाब अभी बस आ ही गया है। विशेष कि अभी लैंग्वेज कौन सी ज़्यादा चल रही है डेवलपमेंट। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो मैंने सामने डिफाइन की ना, ये स्कोप ही मैंने बताया है। ये मतलब जो मार्केट बहुत ज़्यादा चल रही है। अब जैसे कि आपके पास मार्केट में जिसकी जॉब सबसे ज़्यादा है ना, वो आपका आ रहा है जावास्क्रिप्ट, अभी आगे जाके। बट अभी करंटली मार्केट में ये 3 चीज़ें चल रही हैं, जावास्क्रिप्ट, PHP, कोऑर्डिनेटर, लारावेल वगैरह, ये अभी मार्केट में सस्टेन कर रही है। Okay, what about Django? हाँ, Django की डिमांड है, बट अभी मैं ऐसा वो बात कर रहा हूँ जो कि अभी बहुत ट्रेंड पे लैंग्वेजेस चल रही है ना। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड पे लैंग्वेजेस आपके पास चल रही है जावास्क्रिप्ट, वो सबसे ट्रेंड पे है इंटरनेशनली भी और यहाँ भी पाकिस्तान। तो अभी जो इंटरनेशनल मतलब जो ट्रेंड मैंने देखा है ना, जहाँ तक मैं नोट कर रहा हूँ वेब के अंदर, वो सबसे ज्यादा ट्रेंड जा रहा है इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, लाइब्रेरी वगैरह होते हैं जो बहुत ईजीनेस कर देते हैं। लाइक रिएक्ट का लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा रिएक्ट जेएस, एंगुलर आपका फ्रेमवर्क होता है और रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट। तो ये इन्होंने बहुत ज्यादा काम आसान किया हुआ वेब डेवलपर्स के लिए, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है बहुत ईजी होगा, रिएक्ट को पढ़ना है तो करना। और ये मार्केट में काफी सस्टेन कर रही है। अभी जो ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ और जिस तरह अभी सारी चीजें नोट किया, तो उसके हिसाब से अभी जो टॉप स्कोप पे जो चल रही है वो जावास्क्रिप्ट है, और अभी हाईली पेड जॉब उसी की है। ऑलमोस्ट नियरली अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे इसको, तो इसकी डिमांड चल रही है $100K पे, $100K या $98,000 के करीब करीब जावास्क्रिप्ट की हाईली पेड डेवलपर्स की जॉब। फिर उसके बाद आता है कि मैंने जो रोड मैप तैयार किया आप लोगों के लिए, क्योंकि सिंस मुझे पता है कि जब मैंने अपनी एज अ जर्नी स्टार्ट की थी वेब डेवलपर, अब मैंने बहुत सी चीज़ें डिफिकल्टी फेसेस की, बहुत ज़्यादा। तो उसमें सबसे जो मुझे लगा, मैंने कहा कि आप लोग को मैं गाइड कर सकूँ किस तरीके से, ये रोड मैप। क्योंकि बाज़ बात लोग ये कहते हैं कि यार आप HTML CSS कर लो, उसके बाद समथिंग आपने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट देख ली, PHP पे शिफ्ट कर गया। तो एज अ वेब डेवलपर मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ रॉन्ग है, गलत है बिल्कुल। क्योंकि जब आप पूरा एज अ उठाना चाह रहे हो, वेब डेवलपर बनना चाह रहे हो, उसको पूरा रोड मैप उठाओ। और अभी आपकी मर्जी है कि आप PHP एज अ डेवलपर आगे परस्यू करना चाह रहे हो या आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर करना चाह रहे हो, आपके ऊपर है। बट ये एज एक रोड मैप है जो कि मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, तो इस तरह देखिए आप जा सकते हो आगे। और अगर आप इसको फॉलो अप करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि अराउंड 40+ या 50+ की जॉब आपकी आराम से लग सकती है अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, अभी जो हाइप चल रही है बहुत ज़्यादा है। तो पहला आपके पास आ जाता है HTML, जो कि आपका बॉडी रेडी करती है, जो मैं भी थोड़ी देर में हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा थोड़ी बहुत चीज़ों का कि किस तरह इंटरलिंक होती है, किस तरह वेबसाइट वगैरह बनती है। तो आपका सबसे पहले HTML आएगा। जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तो पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन को हम UI UX के तौर पे ले सकते हैं, और
एक और एग्जांपल है मेरे जहन में कि जाहिर सी बात है, जब बिल्डिंग खड़ी हो रही है, नॉर्मल सी पिलर्स वगैरह हैं, सब बन रहे हैं, इट्स जस्ट सिंपल अ बॉडी लाइक इट्स HTML। और जब आप इसके ऊपर सीमेंट वगैरह लगाओगे, उसको जब कलरिंग करोगे, तो इट्स योर CSS, बिकॉज वो अच्छा इन्हांस कर रही है, उसकी जो एक्सपीरियंस है यूजर डिजाइन को और अच्छा कर रही है, तो वो आपकी CSS होती है जो कि उसको अच्छी करती है। फिर उसके बाद आ गई जावास्क्रिप्ट। जो भी आप उसके अंदर कोई इंटरेक्शन करते हो, लाइक क्लिकेबल इवेंट्स बना दिए कि बटन को प्रेस कर दूं मैं तो यहाँ पे कुछ हेलो हेलो वर्ल्ड का मेरे पास कुछ प्रोग्राम आ जाए बना हुआ, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आप करना चाह रहे हो कि मैं बटन दबाऊं तो मेरे पास कुछ एक अलर्ट शो हो जाए कि हाँ भाई आपने बटन को दबा दिया। तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं। और किसी ने बूटस्ट्रैप का नाम सुना है यहाँ पे? अब चैट में बता दो कि किसी ने बूटस्ट्रैप का नाम सुना? एनीबॉडी हर्ड द बूटस्ट्रैप? तो ये तो बूटस्ट्रैप करता है क्या? एनी आइडिया किसी को? एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एग्जैक्टली। अब कोई नया बंदा है जिसको नहीं पता रिस्पॉन्सिवनेस का, इट्स वेरी सिंपल कि अब जैसे कि ये मेरे पास एक इंटरफेस सामने खुला हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, सही है, अब जैसे कि इसको मैंने कर दिया छोटा, तो अब आप ये देख रहे हैं चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही हैं। ये अब मैं साइज छोटा कर रहा हूँ तो चीजें ऑटोमेटिकली, जैसे कि ये नीचे चला गया, अब मैं बड़ी स्क्रीन करूंगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो ये काइंड ऑफ जो चीजें होती है ना, रिस्पॉन्सिवनेस, ये आपकी आती है इसी के थ्रू, आपके बूटस्ट्रैप के थ्रू आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हो कि आपका जब आप डेस्कटॉप खोलोगे तो उस पर क्या डिजाइन आएगा, और जब आप मोबाइल खोलोगे तो उस पर क्या डिजाइन आएगा, वो होता है इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग ऑफ द थिंग्स, ये बूटस्ट्रैप करती है। जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद आप स्टार्ट करें jQuery। अच्छा, इसमें से आप स्विच भी कर सकते हैं, आप बूटस्ट्रैप पहले कर लें और जावास्क्रिप्ट बाद में करें, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। बट बेहतर ये है कि बूटस्ट्रैप आप उसके बाद करें, जावास्क्रिप्ट के बाद। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज या कुछ चीजें होती हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवानी पड़ती है, ये होता है। तो उसके बाद आप jQuery करें। jQuery भी काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट की तरह ही काम करती है। ये भी आपको, जैसे आप कोई क्लिकेबल इवेंट्स बनाना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं, बट ये जावास्क्रिप्ट से थोड़ी छोटी होती है, इसका कोड थोड़ा कम होगा। इसका अगर आप टैग करेंगे ना jQuery का, तो ये कहती है राइट लेस एंड डू मोर। तो इसका मतलब यही कि आप कम काम करो, मतलब राइट लेस, आप लिखो कम और ज्यादा काम करो, इसमें बेसिकली ये है। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद जो मैं आपको रोड मैप पे कहूंगा वो ये है कि अगर आप PHP देखते हैं मार्केट, अगर आप चाहते हैं कि आप PHP डेवलपर बने, सो यू कैन गो विद रोड मैप। यू कैन जस्ट गो अहेड टू PHP, देन Laravel कोऑर्डिनेटर, फिर उसके बाद आप SQL करें, MongoDB, ये डेटाबेसेस हैं। अच्छा, ये इसके क्या है, फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं जिन्हें आसान काम कर दिया। और ये डेटाबेसेस ये क्या काम कर रही होती हैं, ये आपके पास डेटा होती है, अपने पास ये दो लैंग्वेजेस होती हैं, SQL, इसमें आप क्यूरीज वगैरह करते हो, सही है। अच्छा, कुछ लोगों को फर्क पता है इसके बारे में, SQL और NoSQL के बारे में? किसी को फर्क पता है SQL और NoSQL के बारे में? गुड। तो क्या फर्क है इसमें SQL और NoSQL में? अच्छा, पहले माइक खोल के बता दो, इसका कोई मसला नहीं। SQL एप्लीकेशन, हाँ नहीं, दोनों दोनों एज ए वो डेटाबेसेस हैं आपकी, तो SQL सबके लिए यूज हो जाती है। ये अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। जो SQL है आपके पास, वो टेबल्स की फॉर्म में अपने पास डेटा सेव है, और जो आपके पास MongoDB होती है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में अपने पास डेटा सेव है। अब कुछ लोगों को ज़्यादातर टेबल्स का शायद पता हो, डेटाबेस अगर किसी ने पढ़ी होगी, तो SQL डेटाबेस भी काम करती है, मतलब टेबल के हिसाब से काम करती है, और जो MongoDB होती है आपकी, वो एक्चुअली जो काम करती है वो करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये आपके ऊपर है, आप कोई चीज़ फिजिबल समझो कि आप समझ लो मैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी बना सकता हूँ, तो यू कैन गो विद MongoDB। और अगर आप कहते हो कि मैं टेबल्स की फॉर्म में बना सकता हूँ, तो यू कैन गो विद SQL। अब ये तो आपकी जर्नी कंप्लीट हुई है एज अ PHP पे। अगर कोई इसको परस्यू करना चाह रहा है तो वो इसको करेगा।
अगर कोई चाहता है कि आई वांट टू बिकम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर इंस्टेड ऑफ बीइंग पीएचपी डेवलपर, तो उसके पास एक रोड मैप मैंने बना के रखा है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं तो हम रिएक्ट पे जाएं इंस्टेड ऑफ व्हाई वी आर डूइंग एंगुलर। अच्छा, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है कि मैं अपने ज़ाहिर सी बात एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी जब एज अ वेब डेवलपमेंट पढ़ी थी तो जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद आई हैव लर्न रिएक्ट जेएस, जो कि मेरे ख्याल से मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पढ़नी चाहिए थी, मैंने पढ़ी है, बट मिस्टेक इस सेंस में थी क्योंकि अब मुझे एंगुलर समझने में थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो एक अलग पैटर्न फॉलो करती है जो कि एमवीसी अप्रोच होती है। अब तभी मैंने ये एक रोड मैप बनाया, मैंने कहा कि सबसे पहले आप एंगुलर कर लें, क्योंकि अगर आपने वंस यू हैव डन द एमवीसी अप्रोच तो आपको रिएक्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। रिएक्ट तो सिंपली एचटीएमएल की तरह ही काम करेगी, सही है। जो एंगुलर है वो एक्चुअली एमवीसी अप्रोच पे काम करती है, और रिएक्ट जेएस जो सिंपली तौर पे काम करती है। और उसके बाद जाहिर सी बात है सर्वर साइड लैंग्वेज आ जाएगी आपकी, ये बोली नोड जेएस, जैसे पीएचपी थी आपके पास बैकएंड लैंग्वेज आपके पास नोड जेएस आ जाएगी। फिर नोड जेएस को आप डेटाबेस से लिंक कर सकते हैं, likewise SQL, or you can link with the MongoDB. The best combination of the JavaScript is with MongoDB. Okay, so Node.js useful. आपने कभी ये चीज देखी है कि जब आप when you go to some kind of website like Facebook, you can take an example of Facebook, जहाँ आप जाके यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, राइट? और जब आप साइन इन का बटन हिट करते हैं, सही है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ चीज रिस्पॉन्स सर्वर पे भेजता है, सही। वो चीज जो सर्वर पे जा रही है और आपकी डेटाबेस से जो चेकिंग हो रही है, तो जो आपका मिडिलवेयर भी जो काम कर रहा है ना, मिडिल लेयर जो भी, वो आपकी नोड.जेएस का काम है, इसको कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है इसको, सिंपल सी बात, क्योंकि सर्वर की साइड, सर्वर लैंग्वेज क्लियर है। मुझे मैसेज में बताना अगर क्लियर है। ओके कूल। इसकी एक एग्जांपल ये भी मैं दे सकता हूँ साइन अप की, बहुत अच्छी सिंपल सी एग्जांपल है। सो इफ यू गो टू एनी वेबसाइट लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक अगेन, तो वहाँ आपसे यूजर नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, ईमेल मांगेगा, बर्थ ऑफ ईयर आई गेस, और जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो जो चीज गुड क्वेश्चन, यस 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 यस, मैं इसका जवाब इस सवाल के दे रहा हूँ, अभी जो सवाल था ना इनका, मैं इसका पहले जवाब दे दूँ। आई गेस सैयद अब्दुल बासित, बस पता जवाब दे, तो फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। अच्छा, तो जब आप हिट करते हैं साइन अप को, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई एक चीज होगी ना जो कि सर्वर पे एक चीज भेज रही है। सर्वर एक्चुअली क्या कर रहा है, आपके क्लाइंट साइड से जो आपका यूजर है सामने, उससे ग्रैब कर रहा है चीजों को और डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। ये सर्वर साइड का काम है, ये आपकी नोड.जेएस काम कर रही है। रिस्पॉन्स ले लेते हैं और आप उसको डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं, स्टोर करने, ये आपकी नोड.जेएस की है। You can also retrieve the data, you can also save the data, or you can update the data, you can delete the data. सारा जो काम हो रहा था वो नोड.जेएस से हो रहा था। आप क्यूरीज भेज रहे होते हैं उसके थ्रू डेटाबेस को, वहां से फिर एक्शन जनरेट हो रहा है, ऐसे काम होता है। तो अब मैं जवाब देता हूँ सवाल, चेक। हाँ, so after learning JavaScript can you okay, so TypeScript, yes you can work on TypeScript. अच्छा, किसी को पता है कि TypeScript बेसिकली यूज क्यों होती है? Why the TypeScript are used in the big industries? Anybody? ये TypeScript यूज हो क्यों रही है मार्केट में? Exactly, for security purpose, exactly, यही सीन है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर कोई यूजर है, मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई एक यूजर है वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, और सिंस के जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके पास कोई भी डेटा टाइप उठा देती है, आप चाहे उसको स्ट्रिंग पास करते हैं, कुछ भी पास करते हैं, वो उसको एज अ वार ट्रीट करके चला देंगे। बट मेन चीज ये होगी कि जब आप उसको टाइप बाउंड कर देंगे, तो टाइप बाउंड करेंगे तो सिक्योरिटीज काफी बेहतर हो जाती है। ये सीन, ये है सारा इसका सीन। तो रोड मैप क्लियर है लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। Should I move forward? Okay, cool. So
सो अब बात आती है, सो द मेन पार्ट जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो है हाउ टू अर्न। सो जाहिर सी बात है, बेसिकली हर कोई जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो इस लाइक कि यार आई वांट टू अर्न मनी, बिकॉज मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब बच्चे हैं यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के जो कहते हैं कि यार हमने स्किल तो सीख लिया बट हम उस स्किल को यूटिलाइज करके कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक मनी थ्रू आवर स्किल्स। सो दैट्स अ बिग थिंग। तो अब इसकी एक छोटी मैं ट्रिक्स आप लोग को बताऊँ। अच्छा, पहले तो आपके पास वेज ऑफ इनकम दो होता है, ठीक है। यू कैन आइदर गो फॉर फ्रीलांसिंग और फॉर जॉब। जॉब भी दो तरीके की आप कर सकते हो, एक आप रिमोटली कर सकते हो, जो कि पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा हाइक पे आ गई थी, लोग शिफ्ट हो गए थे वर्क फ्रॉम होम की तरफ, तो उस पर भी जा सकते हैं और आप जॉब पे भी जा सकते हैं। तो इट्स लाइक दैट। और उसके बाद लोग कहते हैं असल में फ्रीलांसिंग करें तो किस तरह करें। अच्छा, मैंने कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स यहाँ पे नीचे डाली हैं। इनमें से पर्सनली जो कि मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को, सबसे अच्छी जो यूज हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, वो हो रही है फाइवर। सबसे टॉप ट्रेंड फाइवर का है। फिर उसके बाद अपवर्क है आपके पास, फिर गुरु है, पीपल पर आवर। पीपल पर आवर अब बहुत अच्छी हो गई है बट पहले जब आई थी तो इतना फास्ट नहीं था उसका, उस पर क्लाइंट्स बहुत कम मिलते थे आपको, ये होता था। अच्छा, मेक श्योर कि जब आप लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर करवाओ तो मेक श्योर कि अपने आपको वैलिडिटी प्रूफ करवा दीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि बाद अपवर्क पे तो आपको करवाना पड़ता है, वरना क्लाइंट्स जो होता है ना कभी कभार आपको काम नहीं देंगे क्योंकि आप एज अ वेरीफाइड यूजर नहीं हो। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं बट इट्स बेटर कि आप ये करवा लें वेरिफिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका ये भी हो सकता है कि आपकी जो आईडी होती है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो इट वुड बी रैंक, मतलब थोड़ा रैंक करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को फ्रीलांसिंग और वेज ऑफ इनकम से रिलेटेड कोई सवाल? आई थिंक इट्स क्लियर। अच्छा, ये आप बात कर रही हैं फाइवर की, अपवर्क की, किससे? अगर आप ओवरऑल की बात कर रही हैं तो इस तरह पड़ेगा कि पहला तो आप रेटिंग, आपकी रेटिंग हाई होनी चाहिए। दूसरा, आप प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका टाइम पे डिलीवर हुआ हो प्रोजेक्ट। अगर नहीं डिले करते आप लोग तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है रैंकिंग के अंदर। सबसे ज़्यादा मेन इश्यूज तभी आते हैं। तो इट्स बेटर कि आप बहुत जैसे जैसे कि एक दिन रह गया है सबमिशन के अंदर तो आप एक दिन पहले सबमिशन कर दें, या विद इन डेडलाइन से 12 आवर्स टू 6 आवर्स पहले पहले कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपकी गिग रैंक होना स्टार्ट हो जाता है। और मेन थिंग, फाइवर पे जब आप है ना तो अपना रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा तो क्लाइंट्स आपके पास बहुत जल्दी रीच आउट करेंगे। Okay. So I'll answer the first question. Anas Khan, what about the... Okay. पहले तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले कोई लिंक्डइन यूज करता है यहाँ पे? नो। यस यस, ओके ओके। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फाइंड अ जॉब। रिमोट जॉब हो चाहे कोई सी भी जॉब, इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप यू कैन... यस। हेलो, किसी का माइक खुला भाई? So, okay, let me answer these questions. Remote job आपको देखो, you can find your remote job on Indeed website. You can also find these job on LinkedIn. LinkedIn is a huge platform. आप वहाँ पे जाओ, वहाँ बहुत सारे आपको मिलेंगे remote job के लिए. You can just go ahead, do a search. Google पे थोड़ी बहुत सर्च करोगे ना तो इतनी सारी remote jobs आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, बहुत ज़्यादा मार्केट, और स्पेशली जावास्क्रिप्ट की तो बहुत ज़्यादा है डिमांड। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। And Nadesh Shaki has asked how to attract customer on Upwork if you are new to Upwork. Okay, so बेहतर ये होगा कि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The 3 things are very important in the Upwork. पहला, आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। दूसरा, आपने जो प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए।
जो आपका पोर्टफोलियो है आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस आपने जो कवर लेटर या कुछ भी आप लिखते हो ना, वो स्ट्रांग वर्डिंग, काफी एक अच्छी वर्डिंग हो, बता सके जो आपकी प्रोफेशनलिज्म जाहिर करे। उस ये जो कस्टमर्स होते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें अपवर्क वालों ने मेरे पास एक टेम्पलेट भी दिया हुआ है, अगर आप जाके चेक करेंगे ना, टेम्पलेट फॉर आई गेस टेम्पलेट फॉर कवर लेटर इन अपवर्क, मेरे पास उन्होंने दिया हुआ है, अगर आप जाके चेक करेंगे तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और लिटरली मैं भी वही यूज करता हूँ कभी। So it's a better thing. You can get a free post. So okay, Rahil Memon is asked first from these freelancing websites. हाँ, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा रोहित ने सवाल पूछा। तो रोहित ये कह रहा है कि यार बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अगर हम फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाते हैं। एग्जैक्टली, अब मेरी आप बात देखो कि जाहिर सी बात है, आप न्यू हो और एक एक्सपीरियंस बंदा आपको कोई काम ला के दे रहा तो वो डरेगा सबसे पहले कि मैं नए बंदे को काम दे रहा हूँ, भले ही आप क्यों ना स्किलफुल क्यों ना हो, बहुत ज्यादा स्किल्ड क्यों ना हो, वो डरेगा थोड़ा सा। सही है, आपने अपना पोर्टफोलियो इतना ज्यादा अच्छा रखना है कि वो आपको काम को देख के ही अट्रैक्ट हो। एक तो चलो ये बात हो गई कि आपने पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग रखना है। दूसरा ये है कि अगर आप फाइवर पे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट बायर्स का, जहाँ आप जाके रिक्वेस्ट करते हैं बायर्स को कि हे आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू गाइस, बिकॉज ये चीज मेरी स्किल सेट के साथ बहुत ज्यादा मैच करती है और मैं कर सकता हूँ। तो फिर वो क्या करेगा, आपको रीच आउट करते हैं। वहाँ पे यूजुअली लोग जो होते हैं वो रीच आउट करते हैं इस चीज को, वो निग्लेक्ट नहीं करते इस चीज को। अगर किसी को बायर रिक्वेस्ट के बारे में पता है फाइवर को, एग्जैक्टली, तो उससे उससे इंटरेक्शन कर सकते हो आप। उससे क्या होता है कि मैक्सिमम आप भेजते रहो। अगर आप दिन में 10 ही अलाउड होती है बाय द वे, अगर आप 8 भेज रहे हो, 9 भेज रहे हो बाय रिक्वेस्ट जो कस्टमर है उसको, तो आई गेस आ जाता है रिस्पॉन्स, बट यू हैव टू वेट। और एक और चीज मेन की ये है कि ऑनलाइन रहो। अगर आप फाइवर हो तो उसका एल्गोरिथम रैंकिंग का ये है कि यू शुड बी ऑनलाइन एट ऑल द टाइम। अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लो और वाईफाई रखो उसमें, बस, मतलब एक 3G पैकेज करवा लिया या वाईफाई फुली टाइम कनेक्ट रखो अपने पास क्लाउड वगैरह के थ्रू, तो वो बहुत बेस्ट होता है, उससे अभी एक रैंक करती है। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं राजेश सर, कैन वी गेट फ्री कोर्सेज फ्रॉम लिंक्डइन लर्निंग? अच्छा, पर्सनली मुझे इसका आइडिया नहीं है फ्री कोर्सेज वगैरह का ना लिंक्डइन वगैरह पे, बट अगर आप लर्निंग करना चाह रहे हो, मेरा भी एक टॉपिक है आगे, क्योंकि मैं जहाँ गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप बनना चाह रहे हैं और जीरो एक्सपीरियंस आपके पास, लाइक EDX, या EDX तो फ्री में है। सही 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 है। अच्छा, EDX की तरह आई गेस है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। एक सेकंड मैं बताता हूँ सर। अच्छा, एग्जैक्टली, तो आपके पास फ्री कोड कैंप है, तो फ्री कोड कैंप है, आप वहाँ जाओ। सही है, वहाँ तो एक्सप्लेनेशन भी होती है और आपके पास सारी चीजें, मतलब एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन के बाद कोड का अलग एरिया होगा आपके पास, और आप उसको अपने कोड को टेस्ट भी कर सकते हो, और सारी चीजें, क्वेश्चंस वगैरह सब आपको प्रॉपर्ली डिफाइंड मिलेंगे। और बेस्ट थिंग ये कि वो आपको उसमें सर्टिफिकेशन भी देते हैं। वो फ्री कोड कैंप, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ये है, तो फ्रीलांसिंग वाला जो टॉपिक था वो सब लोगों को समझ में आ गया? और कोई सवाल है, जस्ट गो अहेड आस्क, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस सेशन मोर इंटरैक्टिव, बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होता है, क्योंकि वरना मुझे पता है सब बोर हो जाता है। जो नए फील्ड, मतलब जो नए आना चाह रहे होंगे उसके अंदर, वो बोर हो जाता है कभी कभी। मैं चाह रहा हूँ कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा आप लोग की रहे, इंटरैक्टिव सेशन रखें, जो सवाल है पूछें। गो अहेड। सो फ्रीलांसिंग वाला टॉपिक सबको समझ में आ गया? ओके, ऑसम। सो ऑसम, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, पहले तो अब मैं बताता हूँ, मैं आपको वायर फ्रेमिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये वायर फ्रेमिंग होती क्या है। अच्छा, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ समझाने
बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ जैम्बो। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये टूल मार्केट के अंदर। अगर आपने किसी को वायर फ्रेम करके अगर किसी अपने क्लाइंट वगैरह को बताना है इससे आप वायर फ्रेम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ आती है सबसे टॉप पे उसको क्या कहा जाता है? पहले किसी को कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा। हेडर। एग्जैक्टली, हेडर है ये। आपका हेडर आता है। इसके बाद आपका पूरा बॉडी कंटेंट आएगा जो आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, पूरी बॉडी आएगी। फिर उसके बाद आपके फुटर्स आ जाते हैं। एक बहुत कस्टम सी वेबसाइट ऐसी एक जनरल सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है, किस तरह डिजाइनिंग होती है। वायर फ्रेम कुछ इस तरीके का होता है कि क्लाइंट आपको इस तरह की कुछ चीजें देगा, यार मेरी वेबसाइट पे इस तरह का हेडर वगैरह दो, ये हेडर है मेरा, और इसको दूसरी लैंग्वेज अगर हम इसको आज वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं तो इसको हम नैव बार भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप नेविगेट करते हो सारी चीजों को। तो ये आपकी नैव बार भी है और यहाँ आपका मेन बॉडी कंटेंट है, ठीक है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद फुटर है। फुटर्स में यूजुअली लोग कहते हैं कॉन्टेक्ट्स की चीज़ें डाल देते हैं और अपना मैप का एरिया बता देते हैं कि यार दिस इज द थिंग कि मैं यहाँ होता हूँ और मेरा टाइम स्लॉट ये है, और अबाउट अस वगैरह जो भी जितने भी लिंक्स होते हैं सारे भी नीचे आते हैं फुटर्स के अंदर। तो मैं अब छोटा सा एक हैंड्स ऑन करवा रहा हूँ। मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूँगा। चलो ठीक है, ये एक मैं एक बार बना के दिखा, सही है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टेक्स्ट लिख कर बताऊंगा, सही है। यहाँ पे बॉडी सेक्शन बनाऊंगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, भाई अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे, कुछ भी लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपका फुटर होगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को समझ में आए सारी चीजें कि वेबसाइट किस तरह बनती है, क्या होता है। अच्छा, कोई वेबसाइट यहाँ पे बनाता है, मतलब कोई वेबसाइट डेवलपर है जिसको कुछ थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो? ओके, पहले बेसिक, इट्स ओके, इट्स ओके। यूजुअली जो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लेटफॉर्म जो यूज़ किया जाता है वो है आपका VS कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा है क्योंकि आगे जाके भी कोलैबोरेशन होती है, ठीक है, ठीक है। जितनी भी कोलैबोरेशन होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि सपोज कि आप रिमोटली काम कर रहे हैं और आपका बॉस है, उसने कहा कि यार मैं आपके साथ एक टीम मेंबर यूजिंग VS कोड विद Django, जबरदस्त, हाँ कर सकते हो आप, Django के साथ यूज कर सकते हो। सर एटम भी अच्छा है, बट जो मार्केट में अभी जो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, उसमें जो यूजुअली लोग जो कोड कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो एक्सटेंशंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में VS कोड सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड। अब वो किस तरह करता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सपोज एक रिमोट जॉब पे जाते हो, सही है, और आपको जो बाहर का बॉस है जस्ट क्या करता है कि आपको कहता है कि ये मैं आपको एक कोलैबोरेशन टीम के साथ डाल रहा हूँ और यू हैव टू कोड अलोंग विद देम, तो आपको कोड उनके साथ करना है। तो अब यहाँ सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या आता है कि आप पैरेलल कैसे कोड करोगे उनके साथ, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में हो और वो बाहर अगर कहीं से भी कर रहा है काम, तो आप उनके साथ कैसे कोड करते हो। तो VS कोड में सबसे ज़्यादा चीज़ आसान ये की है कि मैंने लाइव, मतलब लाइव एक होता है लाइव सर्वर, सॉरी लाइव शेयर होता है, लाइव शेयर होता है। उस पर क्या होता है कि डिफरेंट कोलैबोरेशन टीम आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी और वहीं पे कोड कर सकती है। लाइक मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे कोड कर रहा हूँ, आप भी उसी पे ही चेंजेस कर सकते हो, कोई भी आके चेंजेस कर सकता है। तो इसी वजह से VS कोड एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल बन गया था डेवलपर। सो लाइक GitHub, एग्जैक्टली, GitHub बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको गिट और गिटअप का नहीं पता, मैं लास्ट में बता देता हूँ, बट एग्जैक्टली राजेश सही कह रहे हैं कि इसी तरह ही कॉन्सेप्ट उसका। बट VS कोड बस लाइफ टाइम पे होता है कि जैसे अगर आप, जब आपका कोलैबोरेशन सेशन खत्म होगा ना, तो वो कोड हट जाए, जिसने वो सेशन खोला होगा उसके पास सेव, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी एक वेबसाइट बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम यही मैं पैटर्न फॉलो करूंगा। यहाँ मैं हेडर लिख कर दिखाऊंगा, यहाँ मैं बॉडी लिख के दिखाऊंगा और फुटर लिख के दिखाऊंगा। इट विल बी वेरी सिंपल, कलर कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। बट एक मेक श्योर कि मैं आपको एक चीज क्लियर करवा दूं कि किस तरह वेब बनती है, किस तरह HTML किस तरह आती है। अगर आप उसको CSS से लिंक करवा रहे हैं, CSS वही जो स्टाइलिंग शीट है, उससे लिंक करवा रहे हैं, तो किस तरह लिंक होती है। तो
So wait a second. Let's get started. I'm opening my VS Code. अच्छा, आप लोग को अगर VS Code मेरा नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। Okay. एक सेकंड, VS Code एक सेकंड वेट कीजिए। अगर किसी को कोई सवाल वगैरह है तो पहले पूछे, जब तक मैं फाइल रेडी कर लूं। SAS. Oh, there are two types of CSS. Exactly. अच्छा, मार्केट में अगर आप जाते हैं ना इनलाइन करने के लिए, तो ये मार्केट वाले बहुत गलत समझते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि कोड आपका बहुत मैच्ड अप हो जाता है। क्योंकि अगर आपका कोड प्रोडक्शन मोड पे जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है फर्दर ऑन आप अपडेट्स वगैरह भी होती है, मेंटेनेंस होती है, तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें कर नहीं सकते। हर चीज़ के लिए आपको एक अलग अलग फाइल बना के रखनी पड़ती है, ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड रहे, अंडरस्टैंडेबल कोड रहे। बट अगर आप इस तरह एक ही फाइल में मतलब CSS भी लिख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट भी लिख दिया उसी फाइल के अंदर, तो that would be harder for the developer to understand all things. तो अच्छा, SAS एक्सटेंशन, ओके। तो SAS का मैं बता सकता हूँ कि ये समझने के चीज़ और ज़्यादा आसान करने के लिए ना, मतलब स्टाइलिंग को, क्योंकि स्टाइलिंग में सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास CSS के अंदर कि वंस अगर आपने कोई एक चीज़ ऐसे यूज़ कर ली है, एक क्लास आपने यूज़ कर ली, उसके अंदर आपने कलर यूज़ किया था, ठीक है, अब आपने वही कलर दूसरी क्लास में भी डालना है, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो SAS ने एक कॉन्सेप्ट आसान कर दिया, जिसमें कंडीशनिंग भी मेरे पास से डाल दिया बने में, और उसके साथ साथ उन्होंने वेरिएबल्स डिक्लेरेशन डाल दिया। आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं उसके अंदर, और उससे आप उसको कॉल आउट करें और वो वेरिएबल के अंदर एक कलर सेव कर दें। क्योंकि एक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मोड पे जो प्रॉब्लम्स आती थी वो ये आती थी कि अगर आपके पास एक पूरी होल प्रोडक्शन वेबसाइट है और उसका आपने बैकग्राउंड थीम चेंज करना और आपके पास 10 पेजेस है, तो लिटरली आपको सारे पेजेस में जाना पड़ेगा, CSS को जाकर उसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट अ गुड अप्रोच टू डू दिस थिंग, बिकॉज अगर आप SAS यूज कर लोगे उसके इंस्टेड पे, तो आपको जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और उस वेरिएबल को हर जगह यूज करना है। और वंस अगर आपने मतलब वेरिएबल की एक वैल्यू चेंज कर दी, तो क्या होगा, वो ग्लोबली उस चीज को चेंज कर देगा। I think you guys are getting some kind of concept, right? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, जबरदस्त, awesome. So ये SAS का था, ठीक है। अब ओके, जबरदस्त, जबरदस्त। तो मैं बना रहा हूँ एक फाइल, एक सेकंड। एक सेकंड वेट कीजिए यार, कुछ इशू हो गया, एक सेकंड। So I'm making a folder over here. अच्छा, तो ये जो मैं बता रहा था, ये लाइव शेयर है। यहाँ से आप डिफरेंट टीम के साथ कोलैब कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ से बैठे हुए आप लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूँ इसके अंदर, और मैं कह सकता हूँ कि आप आके मेरे साथ कोड करें इसको।
टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। ये लाइव शेयर एक एक्सटेंशन है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सटेंशंस मिल जाती हैं यहाँ पे, बहुत आसानी की हुई है। तो एक ये बहुत बड़ा अच्छा टूल है जो यूज़ कर सकते हैं। इवन गिटअप भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बट मैं भी इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं एक बेसिक से एक वेबसाइट एक गो थ्रू करवाऊँगा किस तरह बनती है बेसिक एक वेबसाइट। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा लिखेंगे इसके अंदर डॉट टाइप करके, जो कि रेफरेंस दे रहा होता है कि जब भी किसी को ये पता है कि हम डॉट टाइप एचटीएमएल वगैरह क्यों लिखते हैं। अगर हम इस तरह स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वेबसाइट के ऊपर लिखा आता है डॉट टाइप, कभी कभी नो आइडिया। ओके, मैं बता रहा हूँ। डॉट टाइप इस वजह से लिखते हैं कि हम जब ब्राउजर में हम जब रन कर रहे हैं तो हम ब्राउजर को गाइड कर रहे हैं कि जो पेज है ये HTML5 का पेज इंस्टेड ऑफ HTML4 का। एग्जैक्टली कि आप डिक्लेयर कर देते हो उसको कि मैं HTML5 रेंडर करवाना चाह रहा हूँ इस वेब पेज के। तो अच्छा, अब सबसे ज़्यादा लोगों को क्या मुश्किल होती है कि ये लिखें भाई डॉट टाइप करके पूरा लिखा HTML यूजुअली मार्केट में यूज ही यही हो रहा है, HTML5 यूज होता है। अब HTML4 वगैरह ये नेगलेक्ट हो गए। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। अच्छा, बहुत से लोगों को ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि हम टैग्स को याद करें। तो VS कोड सबसे ज़्यादा एक बेस्ट सजेशन देता है कि सिंपली आपके एक्सक्लेमेशन का डालेंगे ना और एंटर करेंगे, कोई पूरा पैटर्न रेडी करके दे देगा। बहुत इजी टूल है और सब मतलब इसमें भी बहुत जल्दी जल्दी आप चीज़ें टाइप कर सकते हैं अगर आपने कोई वेब बनानी है। अब मैं एक बना रहा हूँ एक बेसिक सी वेबसाइट, बेसिक। अच्छा, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ये आगे वाली चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। टाइटल जो चीज़ है, जब आप ब्राउजर खोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, वेबिनार गूगल जैमबोर्ड, ये जो चीज़ है ये टाइटल होगी जो मैं यहाँ डिफाइन कर। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये टाइटल शो करेगी मेरे पास बेसिक। तो ये अब बॉडी यानी कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ अपने इसके अंदर, ये HTML मतलब ब्राउजर के अंदर जो बीच का जो मेन पेज है जहाँ आपको ये कंटेंट नजर आ रहा है, ये वाला, ये पूरा कंटेंट यहाँ से लेकर आता है पूरा कंटेंट, ये बेसिकली आपकी बॉडी होती है जिसमें मैं चीज़ें राइट कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर लिख दिया इस वेबसाइट, सही है। ये मैंने एक H1 टैग डिफाइन कर दिया। H1 टैग कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बता देता हूँ। ये हेडर का टैग होता है। जब हम हेडिंग देते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो जाहिर सी बात है बड़ी सी एक बोल्ड हेडिंग होती है, तो उस चीज़ को बोल्ड करने के लिए, एक बोल्ड चीज़ दिखाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं H1 का टैग। VS कोड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप टैग के पास चीज़ें लाएंगे ना वो आपको वो भी चीज़ मेंशन करेंगे। ये देखें, H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट द सेक्शन हेडिंग। मैं इस तरह करूँगा, ये मुझे सारी चीज़ें डिटेल देता रहता है। द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें बताता रहता है। तो जो विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है इस अभी तक के दौर में। फिलहाल अभी जब हम यूज़ कर रहे हैं वेब के लिए यही सबसे अभी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। अभी तो मैं सिंपल सी एक वेबसाइट बना दी है, अब मैं इसको वेब पे रेंडर करके देखूँ। ओके, तो अब ये चीज़ आप लोगों ने कुछ फर्क नोट किया, यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि ये टाइटल है, अब यहाँ पे बेसिक आ रहा है। क्लियर हो रहा है किसी को कॉन्सेप्ट बन रहा है ध्यान में कि मतलब हो क्या रहा है। हैंड्स ऑन करने से बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं एज कंपेरेबल टू जस्ट गिविंग थ्योरी। जबरदस्त जबरदस्त awesome। तो अच्छा, ये आपका टैग हो गया। मैं इधर से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि हेडर जो आपकी चीज़ है वो ये वाली है असल। ये यहाँ पे आपकी चीज़ मेंशन है बेसिक। अब मैं चाहूँ यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैं सपोज मैंने चेंज करके कर दिया कि वेबसाइट, ऊपर से चेंज हो गया। टाइटल देखिए, जो ऊपर टाइटल जो दिए जाते हैं वो इससे दिया जाता है असल बेसिकली। अब यहाँ आपकी मेन बॉडी आ गई है। अब बॉडी का कंटेंट आप देख सकते हैं वो हाईलाइट कर रहा है ब्राउजर कि ये जो जितना भी कंटेंट है, ये जितनी भी चीज़ है ये बॉडी के अंदर है, यानी जो भी चीज़ आप लिखेंगे इसके अंदर वो यहाँ पे है।
real code is also changed in VS Code. मतलब मैं समझा नहीं, मतलब रियल कोड चेंज नहीं होगा अगर आप इधर से इंस्पेक्ट से चेंज कर रहे हैं ना, तो ये आपको ओरिजिनल कोड में कोई चेंज नहीं करता। मैं रिफ्रेश करूंगा वैसे ही सेव होगा, वैसे ही आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ कंटेंट चेंज करना चाह रहा हूँ ब्राउजर के ऊपर दिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया बॉडी टाइप। यहाँ आपको पता चल रहा है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ ये बॉडी के अंदर एंटर कर, सही है। तो अब जो हमने वेबसाइट सोची हुई है ये वाली, इसको मैं जल्दी से इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। इसको मैं एक नैव बार का नाम दूंगा, एक मैं यहाँ आपका बॉडी का टैग बनाऊंगा, हाउ टू मेक लोगो। जो लोगो बनता है वो एक्चुअली बनता है एडोब इलस्ट्रेटर यूज करके बनता है। एडोब इलस्ट्रेटर हो गया आपके पास, और आई गेस एडोब फोटोशॉप वगैरह यूज करते हैं। सिंस इज अ, अच्छा हाँ, एक मेरे पास एक टूल है, अगर आप लोगों ने शायद नाम मेरे पास ना सुना हो, बट मैं बताता हूँ, इट्स अ वेरी ग्रेट टूल। कैनवस, कैनवस किसी ने सुना है? कैनवा, सॉरी कैनवा होगा शायद, इट्स कैनवा, या कैनवा। ओके, दिस इज ऑसम। ये चीज बहुत बड़ी, मतलब मैं कह दूंगा बहुत अच्छी मार्केट गिरी है इसने। कैनवा एक ऐसा सोल्यूशन है कि मतलब यहाँ पे आप आराम से सारी चीजें बना सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार इसकी यूआई कैसी होनी चाहिए, यूआई कैसी होनी चाहिए, तो ये इट्स अ बेस्ट टूल। इवन आप लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आपने कहा लोगो का, फर्स्ट आप एक टाइप कर लो लोगो, और यू कैन मेक योर ओन लोगो ओवर हियर। और अगर अपना लोगो नहीं, क्योंकि बाजू का कभी कभार ये होता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि लोगो भी आप डिजाइन करते हैं, तो जो डेवलपर होते हैं उनको लोगों का नहीं इतना आइडिया होता है, तो हम यहाँ से आगे लोगो उठा लेंगे। जैसे लोगो हमारे पास ये आ रहा है, तो मैं इधर आ गया और जस्ट व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट माय स्पेलिंग ओवर हियर, बस मैं डाउनलोड कर लूंगा और वेब पे मैं लगाना चाह रहा हूँ तो मैं वेब पे भी लगा सकता हूँ। ये ग्रेट टूल है जो कि हम सब यूज करते हैं एज ए डेवलपर। समझ में आ रहा है सबको? Awesome. Great, great, great. Always welcome. Great. So now we'll be implementing these three parts. And the first part will be having navigation, second will be having body, and third will be having footers. ठीक है, तो अब इसमें मैं थोड़ी सी इंटरेक्शन करवा रहा हूँ आप लोग को CSS, बट अभी नहीं करवा रहा मैं एकदम। मैं कुछ टैग बनाऊंगा। जैसे मैंने एक div बना, div कुछ नहीं करता, एक जस्ट सेक्शन डिफाइन कर रहा है कि इधर आप एक काम कर रहे हो। यहाँ से आप कर सकते हैं कि div element has no special meaning at all. It represents its children. It can be used with the class language and the title attributes to make to mark up the semantic comments to be good and तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली अब एक सेक्शन ऑफ कोड डिफाइन करते हो, ठीक है, एक सेक्शन डिफाइन करते हो, तो उसके अंदर आप अपना जो भी चीज़ आप लिखना चाह रहे हो, हेडर्स वगैरह, वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं एक यहाँ पे मैंने लिख दिया एक मैप पार्ट, मैंने यहाँ पे लिखा एक मैप पार्ट, ये एक मेरा सेक्शन डिफाइन हो गया। ये इस जगह पे मेरा मैप पार्ट ही है। अब ये बोल्ड करके लिखेगा, सेम चीजें रेंडर होंगी, बट ये क्या है कि बस एक आपने एक पोर्शन एक सेक्शन के अंदर लिख दिया ताकि एक साफ तरीके से नजर आए। ये सेक्शन अलग बनाया मैंने क्योंकि मैं बॉडी दिखाना चाह रहा हूँ। तो आज राइटिंग तो यहाँ पे मैंने अलग सेक्शन, तो बेसिकली आई एम जस्ट क्रिएटिंग एंड हाउ टू क्रिएट टेबल्स। ओके ओके, वो भी अभी आगे करूँ। तो इट्स लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने एक अलग सेक्शन बनाया है, मतलब अगर मुझे बॉडी के अंदर कोई कंटेंट चेंज करना है, कोई कंटेंट बनाना है, ठीक है, तो आई विल बी राइटिंग द कंटेंट ओवर हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर एंड देयर, बिकॉज़ मुझे पता है कि ये जो मेरा एक सेक्शन मैंने बनाया है, एक पर्टिकुलरली मैंने असाइन की उसको चीज बॉडी, यानी कि मेरा सारा कंटेंट अभी इसी के अंदर आएगा, अलग सेक्शन है ये। तो
अब यहाँ पे एक अनदर मैं एक div बना देता हूँ और फिर मैं डाल दूंगा यहाँ पे footer। सो ये तीनों चीजें आ गई। बट क्या ये ऐसे स्ट्रक्चर दे रही है मेरे पास? बिल्कुल नहीं दे रही है। तो अब हमें यहाँ पे स्टाइलिंग देनी पड़ी। मैंने भी एग्जांपल दी थी ना कि लाइकवाइज के एक बिल्डिंग है आपके पास और जो पिलर्स हैं आपके पास वो एज अ जैसे आपने स्ट्रक्चर बना लिया, उससे पिलर से आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो मैंने HTML से खाली भी स्ट्रक्चर बनाया। अब मुझे इसके अंदर कलरिंग, उसकी एडजस्टमेंट्स, जो भी सारी चीज़ होंगी वो मैं करूँगा स्टाइलिश यूज के थ्रू, CSS जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आप CSS लिंक भी कर सकते हैं। सिंस के मैं एक प्रोफेशनल वे गाइड कर देता हूँ जो कि हम यूज करते हैं डेवलपर, वो यूज करते हैं यहाँ पे लिंक का टैग सिंपल। और यहाँ ये तो CS मतलब ये जो VS कोड है ना, ये सबसे ज्यादा आसानी करता है। मैं जैसे एंटर करूंगा यहाँ पे पूरा मुझे रेडी करके देते हैं। और इफ आई वांट टू क्रिएट स्टाइल डॉट CSS, मैं जस्ट एक कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और हिट करूंगा इसको। मैंने लेफ्ट क्लिक किया, कंट्रोल को दबा के, तो खुद ही लिखा हुआ आएगा कि आप क्रिएट कर दो इस फाइल को। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली लिंक हुई भी CSS फाइल बन जाएगी। सो अब मुझे क्या करना है कि आई वांट टू एक्सेस दीज ऑल डिव्स। मुझे सब डिव्स को एक्सेस करना है और सबको कुछ हाइट देनी है। ओके, सो आई कैन डू इट लाइक दिस। मैंने एक डिव बनाया जिसमें मैंने एक विड्थ डिफाइन कर दी 100%। अब मैं क्या कह रहा हूँ ब्राउजर को कि ये जितनी भी मतलब इसकी विड्थ है ना, ये पूरी विड्थ लेगा ब्राउजर। मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं ब्लू लाइन, जो ब्लू बार जा रही है पूरी जा रही है एंड तक। तो ये बेसिकली क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है विड्थ, पूरी विड्थ शो कर रही है। तो इट्स टेकिंग फुल विड्थ। अब जितने भी डिव हैं वो सारे फुल विड्थ पे जा रहे हैं। तो अब मैं हाइट भी डिफाइन कर सकता हूँ। आई कैन गिव हाइट लाइक 500 पिक्सल्स। अभी नीचे हो जाएंगी चीजें। मैंने हाइट डिफाइन कर, ये देखें ना डिव, जो ब्लू सेक्शन आ रहा है इट्स शोइंग द विड्थ एंड हाइट एज वेल। दोनों चीजें साथ में शो करता है। तो बट ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। I should write, सही लगा था। हाँ, अब ये सेक्शन थोड़ा सही लग रहा है। अब ये क्या कर दिया इसने, हाइट ले ली थोड़ी थोड़ी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका बैकग्राउंड भी चेंज करूँ। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए अब मुझे पर्टिकुलरली नेव बार को ब्लू कलर देना। तो मैं किस तरह ब्लू कलर दूँ? आई कैन गिव द ID, ताकि मैं ID से डायरेक्टली उसको एक्सेस करूँ, क्योंकि सिंस ID क्या होती है, यूनिक होती है। तो मैं ID इस पर्टिकुलर सेक्शन को दे सकता हूँ और सेक्शन को एक्सेस करूँगा। तो सेक्शन को मैं एक्सेस करूँगा अपनी CSS और उसको पर्टिकुलरली स्टाइल असाइन करूँगा। आई कैन गिव इट लाइक दिस। मैंने दे दिया 1, सेम गोस फॉर 2, सेम गोस फॉर दिस सेक्शन। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, मैंने पर्टिकुलरली सेक्शन को एक ID असाइन कर दिया। मैंने कहा है कि अगर ये ID मैं यूज करूँ तो आइडेंटिफाई कर लूँ कि ये वाला सेक्शन मुझे उठाना। Getting some concept? Okay, so ID is always unique. It's used only once. So आपकी ID होती है वो एक दफा यूज हो सकती है, ठीक है, since it's unique ID। और क्लास जो होती है ना, अगर आप क्लास इसको दे रहे हो ना और वही क्लास की फंक्शनैलिटी आप चाह रहे हो मैं इसमें दूं, तो आप उसको नीचे क्लास में वही वाला फॉरवर्ड करो। जैसे अगर मैंने यहाँ क्लास 1 रखा था और मैं चाह रहा हूँ सेम फंक्शनैलिटी नीचे भी वही है, तो मैं यहाँ क्लास और यहाँ 1 दे दूँ। दैट्स इट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास। ओके, सो आई विल बी गिविंग, देखिए मैंने हर डिफ का अलग रखना है कलर। कलर राइटिंग दिस वेलकम बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर मैं एक का दे देता हूँ येलो। अच्छा, ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है UI बहुत मुश्किल लगती है। मैं जैसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अब जो एक सेक्शन पूरा बता रहा है कि मैंने जो डिफाइन की थी कि हाइट 100 मतलब विड्थ 100% हो
और हाइट इसकी आई गेस मैंने कितनी रखी है 200 पिक्सल्स पे, फिर 200 पिक्सल्स ले ली और फिर आपकी पूरी आ रही है यहाँ, ठीक। और यहाँ पे बॉडी कंटेंट आएगा। अब जाहिर सी बात है मैं इसको एक्सेस करके इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगा ताकि सबको आसानी रहे, समझने को पता चल जाता है कि किस तरह की एक्सेस कर दूँगा। तो we do and I'll be writing red as a background। ये जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये स्टाइलिंग में आ रही, मतलब एक मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ उसको, ये प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा हूँ। अब बैकग्राउंड कलर क्या कर रहा है, बैकग्राउंड कलर इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर रहा है। कलर तो नाम से पता चल रहा है, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड एडजस्टमेंट्स हैं ये सारी। तो अब सेम गोज फॉर ट्री एज वेल। तो बैकग्राउंड वुड बी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये वेबसाइट किस तरह बन रही है, किस तरह मतलब आप सीएसएस को लिंक कर सकते हैं, हाउ यू कैन लिंक योर सीएसएस टू एचटीएमएल समथिंग। जबरदस्त। सो इस तरह स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलो एक छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस। तो अगर मुझे इस चीज को सेंटर में लाना है टेक्स्ट को, तो मैं क्या दूंगा? और अगर मैं देना चाह रहा हूँ कुछ चीज भी, प्रॉपर्टी भी असाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहाँ किसको दूंगा? आईडीज में दूं या मैं डिफ में दूं? मैं अप्लाई सब पे करना चाह रहा हूँ, मैं मतलब एक एफिशिएंट अप्रोच बताऊंगा इसमें। डिव में कमेंट सेंटर, डिव में राइट। अगर सबको करना है। हाँ एग्जैक्ट, सबको करना है, एग्जैक्ट सही है। तो हम डिव में दे सकते हैं, वी कैन राइट डिव में टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। हाँ ये अब सेंटर में, अब क्योंकि हमने इसको असाइन किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि सब पे ग्लोबली असाइन हो जाए, जो भी डिव यूज कर रहा है, जो भी अपने सेक्शंस के अंदर कोई डेटा लिखी हुई है तो सेंटर अलाइन हो जाए, तो इधर से कर दिया। यहाँ भी आपने डिव यूज किया था, यहाँ भी डिव यूज हुआ, यहाँ भी डिव यूज हुआ, तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ आपकी वेबसाइट है। तो आप समझें किस तरह वेबसाइट बनती है, क्या किस तरह प्रोसीजर है इसका। अच्छा किसी को ये फर्क पता है कि मैंने यहाँ index.html क्यों लिखा है? एनीबॉडी मुझे कुछ फर्क पता है इसके बारे में? चलो मैं बता देता हूँ। मैंने इस फाइल का नाम एग्जैक्टली अब यूजुअली अगर आप, मैं प्रोडक्शन मोड की बात करता हूँ, अगर आप इसको डिप्लॉय करते हैं इसी वेबसाइट को अगर मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ और आपने होम डिफाइन करना है, तो अगर आप इंडेक्स लिखेंगे ना तो सर्वर बाय डिफॉल्ट उसको एज अ होम ट्रीट करेगा, index.html। क्लियर है? ऑसम ऑसम। सो फार एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, मतलब क्योंकि मैं सेशन को इंटरेक्टिव रखना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है सर? क्लियर है? ऑसम ऑसम ऑसम, जबरदस्त। सो ये तो आप लोग का मैंने इंशाल्लाह श्योर। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल बेसिक वेबसाइट। अच्छा हाँ सॉरी फॉरगेट कि टेबल्स का भी कहा था, मैं टेबल्स भी क्लियर करवा देता हूँ कि टेबल्स बनते किस तरह। टेबल्स वेरी सिंपल है। सबसे पहले तो आप टेबल का टैग बना दो, ठीक है? आप टेबल का टैग बनाओगे तो आपने यहाँ ब्राउजर को डिफाइन कर दिया कि मैं यहाँ पे ना अब टेबल्स बनाने जा रहा हूँ। अब लोग जो यूजुअली कंफ्यूज होते हैं वो इस तरह होते हैं कि हमारे पास जो सबसे ऊपर जो हेडर होती है, हेडर मतलब आपकी जो रो होती है और आपके कॉलम्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो बेसिकली हम जो क्रिएट करते हैं रो को हम pr से क्रिएट करते हैं, ठीक है?
और उसके अंदर जो हम कॉलम्स देते हैं वो हम देते हैं टीडी। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मुझे बता दें, मैं दोबारा समझाऊं। जबरदस्त, ऑसम। सो अब जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि मैंने दे रहा हूँ हेडिंग 1, बी हेडिंग 1 और यहाँ मैं दे रहा हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 2, then be giving heading 3 over here. अब ये कैसे रेंडर हो रहा होगा ब्राउज़र पे, देखते हैं। इट्स लुकिंग लाइक दिस। अच्छा, मैं कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ओके, ये चीज तो आ रही है, बट मुझे इसमें बॉर्डर्स नजर नहीं आ रहा कि मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ये काम किस में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके लिख देता हूँ बॉर्डर, ये डिफाइन कर देगा ब्राउजर को कि इसके अब बॉर्डर आप बंद कर दो, पहले बाय डिफॉल्ट 0 था। तो अब यहाँ पे कुछ सेक्शन टाइप क्रिएट हो गया, सही है। अब मुझे एक और रो बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक और टीआर बना। टीआर इज बेसिकली फॉर मेकिंग द रूल्स एंड टीडी इज बेसिकली मेकिंग फॉर द कॉलम। दैट्स इट। तो टीडी राइट करूँगा मैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 और same goes for here. यहाँ लिखूंगा 2, same goes for this 3. Are you getting some kind of concepts? Concepts के tables किस तरह बन रहे हैं, किस तरह उसके अंदर हम चीजें इनपुट कर रहे हैं। Great. Just like this. सही है, ये इस तरह काम कर रहा है। Using HTML5. HTML5. Actually, the thing is कि आपको CSS के अंदर मीडिया क्वेरीज यूज करनी पड़ेगी अगर आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हो वेबसाइट के अंदर। सो यू कैन यूज मीडिया क्यूरी और यू कैन, या मीडिया क्यूरीज एक बेस्ट सोल्यूशन है। बट अब तो मेरे ख्याल से CSS के अंदर बहुत ज्यादा अपडेट आ गया है कि अब फ्लेक्स भी आ गया इसके अंदर। तो आप यूजिंग फ्लेक्स आप बहुत सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हो। दैट्स अ कूलर पार्ट। तो टेबल्स क्लियर हो गए? वेलकम। सो मेटाटेक्स्ट, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैं मेटाटेक्स्ट बाकी भूल गया था बताना। जबरदस्त क्वेश्चन। देखो, मेटाटेक्स्ट जो यूज किया जाता है, आप लोगों ने कभी वेबसाइट देखी जब आप गूगल पे लिखते हो वो रैंक कर रही होती है कहीं, कभी किसी ने सोचा उसकी लॉजिक क्या है, उसके बिहाइंड वो क्या है? एक्चुअली थिंग ये होती है कि मेन चीज ये होती है कि आप उसके ऊपर, मैं बता रहा हूँ। तो अब उसमें सीन सारा ये होता है कि एक्चुअली जो गूगल होती है ना, जो सर्च इंजन होती है, वो एक्चुअली आपके की टैग्स को उठा रही है। अब मेटा डेटा के जो ये चीज बताई है ना इसने यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये चीजें जो है, ये सारी मैं चीजें जो डिफाइन कर रहा हूँ, मेटा डेटा और उसकी डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डेटा की जो इटसेल्फ डेटा होती है वो मेरे कीवर्ड्स टाइप होता है। अगर आप वही कीवर्ड थ्रो करो, ठीक है, गूगल के ऊपर, और मेरी वेबसाइट डली हुई है गूगल के ऊपर, राइट, मतलब डिप्लॉयड है, तो वो क्या करेगा, वो कीवर्ड्स को जाके मैच करेगा उसमें। अगर वो कीवर्ड्स मैच कर रहा होगा और आपकी एसईओ, जिसको एसईओ कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो इसमें भी बहुत सारे कीवर्ड्स तरीके से यूज करने पड़ते हैं। आपको कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में डिफाइन करना है। अगर वो कीवर्ड्स आपके साथ मैच करेंगे तो आपकी गूगल पे वो कहीं रैंक करेगी। तो मेटा डेटा इसलिए होती है आपकी रैंकिंग करवाने के लिए, बेसिकली। सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं वैसे मेटा डेटा का, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी अलग चीज होती है। सो awesome. So I guess everything is done till here. So in last मैं एक अपनी फेवरेट कोट है तो मैं कोट करना चाह रहा हूँ। So when the people says you can do it, it's impossible. Never lose the hope just because they can do it doesn't mean that you can do it. जाहिर सी बात है, मैं एक मोटिवेशनल कोट यहाँ दूंगा कि अगर लोग कहते हैं कि मतलब जो लोग हैं उनके लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल है, वो कहते हैं कि यार ये काम हो नहीं सकता, बट वो काम आप कर सकते हो, राइट? बिकॉज उन्होंने नहीं किया उसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं कर सकते, आप भी कर सकते, आप कर सकते हो अपने अंदर। मतलब आप मोटिवेशन रखो काम करने की। क्योंकि मैंने जैसे बताया, मुझे बहुत मतलब ऊपर नीचे हुआ मैं डेवलपमेंट में, कभी मैंने कुछ चीज़ वो पढ़ी है और कभी आगे पीछे हुआ हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने जो भी रोड मैप दिया है, मैंने बहुत
मतलब समझो 1 साल लगा था मुझे पूरा इस रोड मैप को खुद फॉलो अप करने। बट इन लास्ट मैं ये कहूँगा कि जब अप्लाई करोगे ना डेवलपमेंट फील्ड के अंदर और जब आप जाएंगे एज अ वेब डेवलपर, इट वुड बी ऑसम, ट्रस्ट मी। सही है। और फ्रीलांसिंग आप आराम से कर सकते हो अगर आपने ये स्किल्स कर लिए। either you can go for JavaScript thing, either you can go for PHP one. दोनों में सही है, मतलब अमाउंट आपको अच्छा मिलेगा फ्रीलांसिंग। So thank you so much for attending this session. If you guys have any question, तो पूछ लें। Yeah, sure. Sure, can we work with Django Flask? Same way. Okay. So, I would like to thank Mr. Bashir for this great webinar and provide some concepts for the people. And I also want to thank you all for being your part in this webinar. Hope to meet you all again. Till next time, please stay safe. ऑलवेज वेलकम। अच्छा, एक सवाल का मैं जाते हुए जवाब दे देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज अभी जो कॉम्बो चल रहा है ना, रिएक्ट और जेंगो का, so you can go with Django. Okay. So thank you guys for attending the session. So hope you guys have an amazing day. Take care. Goodbye.